टीचर आ गए हैं क्लास में. I'm so sorry, everyone. Actually, No, I sorry. overworked myself, so I was little down yesterday, last night. I don't know. I woke up at 4 o'clock and around 4:15, I did some of my gratitude, and I don't know why I slept again. And I completely, I'm really sorry. Okay. It's हमने okay. मस्ती करी बहुत सारी Sorry. क्लास में. पेपर हाँ? फाड़े, फेंके, मस्ती करे, थोड़ी सी चिल्लाए, पुकारे. अच्छा. आपको दिख रहा है ना कितना पसारा है पेपरों का और का. ये टीचर नहीं है जब तक, चलो अपन थोड़ी मस्ती करते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके ओके, चलो पीट स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं. मैं जरा मोबाइल लेके आती हूँ. Thank you for waiting. Thank you so much for waiting, everyone. I'm really, really sorry. This has never happened before. I don't know. In the past 3 months. हो जाता कभी कभी. टाइम टेबल से अलग भी कुछ करने का बॉडी को मन करता है. Yeah, actually, I was following my timetable, but yesterday I overworked myself. I was working till 10, and so maybe because of that. Okay, so Peak state. This is 2. okay, so let's do our peak state programming. 1. Go. Come on, run. Run faster. Yes, fast. In Olympic race and you are winning. Standing in the same position. Just move your hands faster and faster. Come on, everyone. Okay, Let's do. so let's start. 3, 2, 1. Go. Come on, run. Run faster. Run. Yes, fast. Yes. Come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes. Come on. Yes, you can do it. Come on, fast, faster. पानी से भी तुम Yes, मैंने yes. बस तो पता तो नहीं पड़े पानी Keep से running, fast. Yes, come on, fast. कवर Run होते faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, I'm the winner. We all And are say the to winners. yourself, I'm the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. Yes, I'm the winner. And now We say to all yourself, are the winners. yes, I am the winner. Yes, I am the winner. Yes, we all are the winners. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I can. I will. I will. must. I must. I can. I will. I must. Thank you so much. Thank you. Okay, who would like to read today? If no one is coming up, then I will read. Okay. Thank you, Amina. So our
magical chapter about money today. And so let's start. Just a minute. Okay, so what do you all see in this picture? Money making much. There is a bag full of money. Yes. Magical And magical sparkles are coming out. sparkles are coming up. Yes. चेहरे पर भी आ गया sparkles. Money दिख के. How nice. Okay, so અમે let's. ભાગીને આવ્યા હો તારું સ્ટેશન કરવા માટે. Sorry. ડુમ્મસ ચાલ્યા, ડુમ્મસથી ભાગીને આવ્યા. What? She has Mommy? come running from Dumas, specially to attend the session. Wow, how nice. Mommy is so dedicated. She never missed any class till now. Very nice. Thank you, Mommy. Okay, let's read. Okay. Gratitude is riches. Complaint is poverty. Said by Christian Science. Said in Christian Science. Hymnal. Right. If there is a lack of money in your life, understand that feelings worried and envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life money in your life can never improve. It will worsen. यानी ये बात समझ लीजिए कि जितना आप कंप्लेन करोगे मनी के बारे में, तो वो भी आपको जितना आपके पास है वो भी धीरे 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 आपसे ले लिया जाएगा, क्योंकि आप अप्रिशिएट नहीं करते हो मनी को, हमेशा कंप्लेन करते हो। यहाँ पे जो क्रिस्टल हिम्नल में बोला गया है कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। जितना आप शुक्राना करोगे मनी के बारे में, इतना ही आप एबंडेंट होते जाओगे। जितना आप कंप्लेन करोगे, इतना ही आप पुअर्टी की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों की कई लोगों की मेंटालिटी बचपन से ही बन जाती है कि पैसे को बचाओ, उसको वेस्ट मत करो, या तो फिर कभी कभी पेरेंट्स भी हमको बताते हैं कि नहीं इतनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो, या यानी जो भी, अगर अभी भी आप अपने घर में करते हो, सबको ये जताते हो कि नहीं, किसी को बुरा मतलब फील करवाते हो बिकॉज ऑफ मनी, तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये कंप्लेन वाली फीलिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, आप मनी को लेके कंप्लेन कर रहे हो, या फिर आप कभी कभी आपके पास पैसे नहीं है और आप कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हो, कुछ खरीद नहीं पाते हो, तो डिसअपॉइंट हो जाते हो। यानी जो भी लाइन के बिलो वाली फीलिंग्स देते हो जब आप मनी के बारे में, तो समझ लो मनी कभी भी आपके पास नहीं आएगा। मनी ऐसे लोगों के पास जाना ही पसंद करता है जो लोग, और एक और बात समझ लो, मनी ओनली एंड ओनली एनर्जी है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि यू हैव टू अर्न टू हैव मनी, दिस दैट, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा मनी के बारे में, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मनी इज जस्ट एन एनर्जी। जैसे अभी सभी चीजों की एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो कैसे हम फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से हम ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं, तो सेम वे मनी भी एक एनर्जी है। और जब आप मनी को भी एक अच्छी एनर्जी भेजते हो, जब आप मनी के बारे में सेटिस्फाइड फील करते हो, खुश रहते हो, जितना है उसमें उसका बहुत शुक्राना करते हो, तब आपके पास भी मनी खींचा चला आता है। क्योंकि इसके लिए भी आप एक चुंबक यानी कि एक मैग्नेट बन जाते हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि जितना चिंता करोगे मनी के बारे में,
इतना ही मनी को दूर धकेलोगे अपने से। किसी को देख के एनवियस या जेलस फील करना कि अरे यार देख इसने तो ये कार ले ली, इसका तो ये घर हो गया, देखिए तो ये ट्रिप करके आया और आई। जितना भी एनवी और जेलसी फील करोगे इतना ही आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। तो अभी इतना खाली समझ लो कि जितना भी आप मनी को लेके जितनी भी लाइन के बिलो वाली फीलिंग्स में जाओगे इतना ही आप मनी को अपने आप से दूर करोगे। तो ऐसा होता ही है। तो आपको लगेगा जब आप शुक्राना स्टार्ट करते हो मनी के बारे में, आप ही देखोगे कि कैसे कैसे आपके पास चल के मनी आता है। आप बिल्कुल अडंग रह जाओगे, मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि वाह ऐसा भी होता है। हाँ जरूर होता है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ये सब ध्यान में रखना है ये चीजें। हाँ फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है मनी के बारे में, कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन आए, तब आपको याद रखना है कि नहीं मुझे तो मनी के बारे में हमेशा अच्छा ही कुछ न कुछ सोचना है और अच्छी ही फीलिंग्स यूनिवर्स में भेजनी है। ओके, तो ये अभी सब बंद कर दो। मान लो आप सब्जी खरीदने गए और वेंडर ने बोला कि नहीं इतने इतने पैसे होंगे, चलो कोई बात नहीं, आपको अगर बार्गेनिंग भी करना है, मैं तो बोलूंगी कि कभी भी वेंडर्स के साथ तो बार्गेनिंग मत ही करो। आप हम वैसे ही अगर मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जो भी पैसे हम दे देते हैं, कितने भी पैसे हैं ब्रांडेड चीजें खरीदने में तो हम दे देते हैं, फिर वेंडर वेजिटेबल वेंडर्स के साथ जाके वहां पे आर्ग्यू करते हैं एक एक दो दो पैसे रुपए के लिए। ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दो। उनकी तो रोजी रोटी यहीं से चलती है, तो उनको जितने भी पैसे देने होते हैं आप अपना देख लो तब क्या करना है। लेकिन उसके बाद जब मनी का लेन देन होता है, जब पैसे देने या लेने होते हैं, तब बहुत ही अच्छी फीलिंग्स के साथ लो या दो। मान लो कभी कभी कोई बहुत बड़ा खर्चा हो गया किस चीज का और आपको लगा कि यार ये इसने तो बहुत पैसे ले लिए, पर वो फ्रस्ट्रेशन के साथ मनी का डीलिंग कभी नहीं करना। ऐसा हो तो थोड़ा सा अपने आप को वहां से रिमूव कर लो। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर भी रहे हो, पहले अपने आप को ले आओ, अपने आप को ले आओ कि ये अगर मैं करूंगी तो ये बहुत ही मुझसे मनी को दूर धकेलेगा। तो तुरंत ही अपने आप में अलर्ट हो जाओ। जब आप दे रहे हो या ले रहे हो पैसे, तब बहुत ही अच्छी फीलिंग्स के साथ करो वो लेन देन। वहां पे इतना समझ लेना कि जो कंपनी के साथ आप फ्रस्ट्रेटेड हो या जो भी पर्सन, जिस पर्सन ने आपके साथ मे बी उसने ज्यादा चार्ज किया या जो भी है, यहाँ पे अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो समझ लेना कि मनी के बारे में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। वो पर्सन का कुछ नहीं जाएगा, वो जो इंसान है जिसने आपके साथ ये किया है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो मनी को लेके तो आपका बिगड़ेगा। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Sure. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind. आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ हाँ एकदम परफेक्ट। Okay. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. तो अभी आपकी कोई भी जो भी सर्कमस्टांसेस है मनी के बारे में, अगर आप हमेशा ही लेक फील करते हो कि मेरे पास मनी नहीं है, इनफ नहीं है, इनफ नहीं है, कोई बात नहीं, अब तक का जो भी है उसको भूल जाओ और आज से एक नई शुरुआत करते हैं। कैसे? कि मनी के बारे में जितना भी आपके पास मनी है या जितना भी पास्ट में था उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना।
जो भी आपको अब तक मिला है उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राने करना पैसों के बारे में, और फिर मैजिकली आपकी जो जैसे इंक्रीज होगी आपकी लाइफ, आप बिल्कुल दंग रह जाओगे। ये मेरी गारंटी है आपको। इतना पैसे कब कहाँ से आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. तो The अभी subject आपके of लिए money, चैलेंजिंग हो सकता है कि भाई मेरे पास तो मनी है नहीं, तो मैं उसके बारे में कैसे अच्छा फील करूं। बट इतना समझ लीजिए कि अगर आप नहीं ये करोगे तो वैसे भी आपकी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होने वाली। तो एटलीस्ट करके देख लो, क्या जाता है उसमें। ये यहाँ पे ग्रेटिट्यूड भी जो हम कर रहे हैं, सबको कई कई लोग आते हैं वापस चले जाते हैं, उनको लगता है कि यह क्या है, ऐसा थोड़ी करना होता है, हम वैसे भी तो ग्रेटफुल लोग हैं, हम वैसे भी तो शुक्राना करते हैं। नहीं, आप जो शुक्राना करते हो उसको शुक्राना ही नहीं बोल सकते। पूछो अभी ये जो लोग यहाँ पे अभी 2 महीने से हैं, उनको पूछो क्या वो शुक्राना करते थे पहले। वो बोलेंगे कि नहीं, शुक्राना का वर्ड भले वो बोलते थे पूरे दिन में, पर अंदर से क्या शुक्राना होता है वो कभी फील किया है? किसी को बोलना है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस? हाँ, मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि यस, लाइक हमारे में तो वैसे भी रहता है कि हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र बोलते ही हैं, बट वो फील नहीं होता था, वो ऐसे निकल जाता था मुंह से, लेकिन फील नहीं करते थे। लेकिन अभी ग्रेटिट्यूड से, ये डीप सब पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से फील होता है, हर चीज डीपली फील होती है। और सर्कमस्टांसेस कैसे बदले कि नहीं? सर्कमस्टेंसेस भी मैजिकली काफी चेंज हो गए। आती है डिफिकल्टीज, आती है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टीज सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसको हैंडल करने में काफी नजरिया चेंज हो गया है, स्ट्रेंथ आ गया है मेंटली, काफी चेंज। क्योंकि चैलेंजेस कभी बंद नहीं होते, लेकिन वो उसको फेस करना काफी अच्छे से आ गया है। एग्जैक्टली जो ईसीजी में भी हमारे हार्ट बीट भी अप डाउन दिखाते हैं ना, तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। ये जैसे कल का दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बट इट्स ओके, यू नो, इट हैपेंस। अभी तो भी हमेशा आपको शुक्राना में जब आप रहते हो तो मैजिकली धीरे 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 आप हो जा मतलब आप वो पार कर सकते हो जो भी सिचुएशन आती है। कभी पहले पहले आपको छोटे छोटे मिलेंगे जो जो भी चैलेंजेस होंगे, फिर आपके चैलेंजेस भी थोड़े बड़े बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे आपके सपने बड़े होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि आपको अगर अपनी लाइफ को अभी चेंज करना है, आपके सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना है, तो आपको ये समझ के ये आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो शुक्राना है, ग्रेटिट्यूड, कितने सारे लोगों ने बोला है कि ग्रेटिट्यूड इज द की फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे और हमें हाँ, करने में क्या जाता है? ये आज का जो हम्म, ये आज का जो खास करके मनी का है, न्यू पीपल बहुत अच्छे से आप समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैं काफी ऑलवेज वरीड रहती थी मनी को लेके। यानी आता भी था तो खुशी नहीं होती थी, पता नहीं क्या था वो, ऐसा ही होता था, ये आएगा तो यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, वो सभी सोचते रहते थे। नहीं, लेकिन अभी काफी चेंज हो गया, मनी को लेकर भी काफी फीलिंग्स चेंज हो गई है। वेरी नाइस अमीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल। यहाँ पे शेयरिंग ये करने बात से तो है कि पैसा आने के पहले उसका खर्चा डिटरमाइन था कि यहाँ 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 करना है। या अभी मैं स्पेंड करने लगी हूँ, पहले तो मैं सेव ही करती रहती थी कि नहीं नहीं ये प्रायोरिटी है, इसके बारे में सेव करो। खुद के बारे में मैं अलिफिया को भी काफी बार बताया कि खुद पे स्पेंड करने की बात आती थी ना, तो अभी जरूरत नहीं है, ये है नहीं, लेकिन अभी अच्छे से स्पेंड करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम अच्छे से अंदर से फील गुड करते हैं तो दूसरों को भी अच्छे से हैप्पी रख सकते हैं अंदर से।
खुद को आप आपकी इच्छाएं मारोगे, आपको अनहैप्पी करोगे, तो दूसरों को इतनी अच्छे से हैप्पीनेस दिखावा करोगे हैप्पीनेस देने का, लेकिन वो ट्रू हैप्पीनेस नहीं दे पाते हो। एग्जैक्टली, वेरी दैट इज हाँ हाउ इट वेरी इज। ट्रू। तो यहाँ पे शेयर करने से भी आप एक पब्लिक के लिए एक सेवा ही करते हो। जब आप यहाँ पे आके शेयर करते हो कुछ भी, तो एक तरह का आप यहाँ पे दे रहे हो कुछ ना कुछ। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है आमिना, आप हमेशा शेयर करते हो अपने, जैसे उस दिन आपने शेयर किया कि आप तीर की तरह देखते हो कि जब कोई नेगेटिविटी आती तो सबको भी बहुत फायदा होता है। तो यहाँ पे सब लोग आके प्लीज शेयर करें। आपकी शेयरिंग से पता नहीं किसको कितना फायदा हो सकता है। उनको एक अलग तरह का एक फेथ आएगा, एक कॉन्फिडेंस आता है ये सब प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि सभी को डाउट्स होते हैं, माइंड तो डाउट्स लाके ही रखेगा। आपके जो डुअलिटी ऑफ माइंड है, वहां से एक माइंड तो हमेशा डाउट्स में रहेगा कि अरे ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है। हाँ, इसीलिए आगे बढ़ने के लिए ऐसी सब शेयरिंग्स सबको बहुत इंस्पायर करती है कि हाँ इसके साथ हुआ है, अलिफिया के साथ हो रहा है, विनीता जी के साथ हो रहा है, बानू जी के साथ हो रहा है, तो सबके साथ, यानी ये सही है, ये हम सही रास्ते पे हैं। ऐसे कई लोगों के साथ है, मैंने बोला ना कि 10,000 से भी ज्यादा लोग इंडिया में अभी ये मोमेंट में जुड़े हुए हैं। और यहाँ अगर दुनिया की बात करूं तो मैं यहाँ यूएस में तो कितने सारे लोगों को मैं देखती हूँ ये सब करते हुए। मैं यूट्यूब पे भी कभी कभी जाके मैं देखती हूँ कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मैजिक बुक की रिव्यू रखा हुआ है कि कैसे उनकी लाइफ बदल गई है मैजिक बुक करने से। या रोंडा बर्न की कितनी भी बुक्स, या लुइस है की बुक्स, जो लुइस है ने जितनी बुक्स लिखी है वो करने के बाद जो मिरर वर्क है वो तो सबसे ज्यादा, वो इतनी डीप लिखी हुई है वो बुक के क्या बताऊं आपको। आप चालू करने वाले थे ना मिरर वर्क, इस मंथ से शायद चालू करने वाले थे। नहीं, यानी I was पावर eagerly बुक waiting. खत्म होगी उसके बाद। उसके बाद ओके, हाँ, I'm eagerly waiting for that. yes, we will definitely start. I am also doing the mirror work right now. So मिरर वर्क या ये सब जो बुक्स है ना, ये लाइफ चेंजिंग बुक्स है। ये ऐसे ही नहीं लिखी गई है जैसे कोई, इसको समझ लो कि ये बाइबल, कुरान, ये सब जो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं हमारे, जो धर्म की जो बड़ी बड़ी बुक्स है, उसके कंपैरिजन में ही ये सब बुक्स आती है। इतना समझ लेना आप। इतना है कि ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, बहुत सिंप्लीफाई करके हमें बताया गया है सब चीजें। बाकी सभी बुक्स के अंदर ये लाइफस्टाइल के बारे में ही लिखा है। हाँ, लोगों ने आपको कुछ और बताया होगा, वो भी इंसान। यहाँ पे अगर हम ये पैदा हुए हैं धरती पे, तो समझ लेना हम सबके पास सेम पावर है और हम सब यहाँ पे सेम चीजें अपने पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर किसी ने कोई इंसान ने ही आपको बताया हुआ है कि इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, तो समझ लेना कि वो गलत भी हो सकता है, वो सही है, वो सब जरूरी नहीं है। पर ये सब बुक्स है, आपको रीड करके पता ही चलता है कि कैसे इंटेंशन के साथ ये बुक्स लिखी गई है। यहाँ पे आप जैसे जैसे इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, आपको पता चलता है कि ये बुक्स किसी एक को लिखने की वो नहीं है ताकत। बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है ये सब बुक्स के अंदर, और सबसे ज्यादा तो सुप्रीम पावर का हाथ है इसके अंदर। ये जो बुक्स होती है वो ये पूरी गाइडेड बुक्स होती है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे लिख दिया। इसके एक एक शब्दों में, एक एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, क्योंकि ये पूरा गाइडेड होती है ये बुक्स, सुप्रीम गाइडेड। तो ये बुक्स को ऐसे ही मत लेना। यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई है वो सनातन सत्य है ये चीजें, और ये सब चीजें तो साइंस से भी बैक्ड है। ऐसा नहीं है कि खाली स्पिरिचुअलिटी में से लिया गया है। ये पूरी चीजें सनातन सत्य है। बतुल, आपको कुछ पूछना था यहाँ पे? कुछ सुनाई नहीं दे रहा बतुल, सॉरी।
कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। नो एक्चुअली एवरीबडी कैन यू लिसन इट? नहीं नहीं आवाज आ रही है, कम आ आवाज रही नहीं आ है। रही, उनका स्पीकर लगता दूर है। हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है पर ज्यादा। चलो मुझे थोड़ा सुनाई दे रहा है, मैं ट्राई करती हूँ। हेडफोन लगा रखी तो उनको बोली निकाल के बोली, हेडफोन से भी होता बहुत बार। हाँ नहीं उनका हेडफोन तो नहीं है, मैंने देखा। बोले बतूल, देख देख तो मैं सुनती हूँ, ट्राई करती हूँ क्या बोल रहे हो। अभी आपने पूछा ना कि आपको क्या आप ग्रेटिट्यूड करके आपको क्या अच्छा लगा। हाँ हाँ ग्रेटिट्यूड करके विद आमिना बेन कि हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र बोलते हैं लेकिन थ्रू हार्ट नहीं बोलते। तो आपने जो प्रैक्टिस करवाई सुबह जल्दी उठ के ड्राउजी स्टेट में लिखना ग्रेटिट्यूड, जाओ टेरेस पे जाके अब खुद को बोलो, इससे बहुत ही चेंजेस आता है। चेंजेस एज लाइक कि नेगेटिविटी आती है, कुछ इसके साथ हुआ, कुछ बच्चों का हुआ, कुछ ऐसा हुआ, दिन में बहुत ही नेगेटिविटी आती है, लेकिन वो है ना उतना इफेक्ट नहीं करता माइंड में। जल्दी एग्जैक्टली खुश रहने, हैप्पी में, पॉजिटिव वे में, हैप्पी मोड में आ जाते हैं। ये तो पूरा दिन लग जाता है, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, फिर इससे अपसेट हो गए उससे अपसेट हो गए। क्योंकि मेरा नेचर क्या था कि मैं पहले बहुत, मैंने आपको बोला ना बहुत, मैं इतना माइंड नहीं करती, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ना वो पर्सनालिटी पूरी चेंज। Actually, I wanted it my initial personality and you helped me very much in that. और मुझे 4 दिन में इतना अच्छा लगने लगा ना, मैं 4:45 बजे उठ जाती हूँ। वाओ Initially, I was waking up at 5:30, but now I'm trying to get up और बेड उठ के डायरेक्ट बेड के लगने चालू हो जाती हूँ। वाओ टेरेस पे जाना भी रेगुलर ही है, 4 दिन से जाती हूँ। फिर आज आपने बोला कि आधा घंटा अपने साथ रहो, so it feel very nice। खुद को प्यार करो, it is very important, it is very important। वो भूल ही गए थे लाइफ में, ये भूल ही गए थे कि कुछ है, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये दर्द हो रहा है वो दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है। यस यस। सो बतूल ने यहाँ पे, अगर सबको नहीं सुनाई दे रहा तो मैं थोड़ा यहाँ पे बताऊंगी बतूल ने क्या बताया। तो यहाँ पे बतूल ने यही बताया कि उसको खाली थोड़ा थोड़ा ये, हाँ जैसे आमिना ने बताया वैसे सेम, कि पहले शुक्र बोलते थे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ऐसा बोलते थे, पर अब जब जब से उन्होंने ये स्टार्ट किया है, वो मॉर्निंग में उठती है 5, 4:45 बजे, वो टेरेस पे जाके ये सब लिखती है, ड्राउजी स्टेट में ग्रेटिट्यूड लिखती है, तो उनको बहुत ही फायदा हुआ है। वो बोल रही है कि पहले इतनी नेगेटिविटी में रहती थी वो, हमेशा कंप्लेंट्स में, बॉडी के बारे में कंप्लेन कि ये दर्द है वो दर्द है। अभी भी चैलेंजेस आते हैं पर वो पॉजिटिवली उसको टैकल कर पाती है। तो आई एम सो ग्लेड कि यू गाइज आर मेकिंग दैट एफर्ट्स अपनी लाइफ के लिए, खुद अपने इतने एफर्ट्स डाल रहे हो आप लोग, और आपको ये सब चेंजेस मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आते हो, जो भी यहाँ पे सिखाया जाते है अपनी लाइफ में उतार रहे हो, खाली यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आते हो। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। एक ये अलग ही चीज होती है कि एफर्ट्स लगाना, अपने खुद के एफर्ट्स डालना, और अब जो भी सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी बहुत बहुत जरूरी होता है। और आप लोग अगर ये कर रहे हो तो बहुत ही मतलब सभी के लिए एक इंस्पिरेशन की बात है। ओके सो लेट्स रीड फर्दर। Feeling grateful for money when you have sorry. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue this money practice throughout the day. तो आपको सुबह उठ के ये मैजिक मनी की जो प्रैक्टिस है चालू करनी है कल। ये 2 स्टेप्स में दिखाई गई है, आगे पढ़ेंगे कैसे करना है। Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory,
where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What, whatever the most exciting birthdays gift you received when you were a child, what were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movie, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicines when you were not well? Did you go to the dentist? Did you go did you have essential items that you used every day like your toothbrush, toothpaste, soap and shampoo? Scroll up. Yes, yes. Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All of these things cost money. Okay, yeah, let me actually reiterate this point. तो आज कल की आपकी प्रैक्टिस के लिए आप सबकी कल स्टार्ट होगी, मेरी जैसे आज स्टार्ट हो गई, तो आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आज शांति से पहले बैठना है, सुबह उठ के जब आप लिखोगे ये ग्रेटिट्यूड, उसके बाद शांति से 5 मिनट 10 मिनट बैठना अपने खुद के साथ और आंखें बंद कर लेना। ये मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है। इन्होंने खाली इतना बोला है कि रिकॉल करो ईच मेमोरी को, पर आप क्या करना, आंखें बंद करके बैठना और बचपन से लेके आज तक जितना भी मनी आपके लिए खर्चा किया गया है, जितना भी पैसे आपको मिले हैं, अभी ये देखो यहाँ पे ये बात समझने की बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आप कमाएंगे तो ही पैसे आएंगे, आपको लगता है कि मैं ये करूंगा या मेरा हस्बैंड ये कमाएगा तो ही पैसे आएंगे। अभी आप जब ये रिकॉल करोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसे हम लोगों से आते हैं, पैसे भी कहीं ना कहीं पे सुप्रीम ही आपको देते हैं। ये आपको एहसास होगा जब आप ये पीछे मुड़ के जाओगे और जब ये आप काउंट करोगे चीजें जो आपको मनी से मिली है, जो चीजें ऐसी थी जिसके लिए कहीं ना कहीं पे पैसे का खर्च हुआ है उसके पीछे और वो आपको मिली है। तो आप यहाँ पे देखना कि कभी भी क्या आपको कमी हुई है पैसों के बारे में? अगर कमी हुई भी होगी तो आपकी खुद की सोच की वजह से, अदरवाइज कहीं पे भी जब भी कुछ पैसों की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से वो अरेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमाओगे तो ही आएगा। यानी यहाँ पे एक बात मैं समझाने का ट्राई कर रही हूँ आप सबको कि हम जो अपने हाथ में लेते हैं ना, अपने हमेशा कंट्रोल, कि नहीं मैं करूंगी तो ही ये होगा या ये ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सही ढंग से फील करते हो, आप शुक्राना में हो, यस, पैसे सुप्रीम के हाथ में है आपको देना या ना देना। ये आपको यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको अभी ये क्या करना है, बैठ के शांति से पूरा सोचना है जो जो चीजों के लिए पैसे का भुगतान आपके लिए किया गया था। अगर आप बचपन में पैदा हुए तो अगर आप कोई हॉस्पिटल में पैदा हुए थे तो वहां पे किसी न किसी आपके मम्मी पापा ने पैसे दिए थे, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो सोच लो कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे। वहां से लेके आज तक का आपका खाना, रोज आप खाना खाते हो जो भी, मुझे इतना पता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास जरूर एटलीस्ट 3 टाइम का या 2 टाइम का खाना जरूर था, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, पर कहीं ना कहीं उनके कर्म होते हैं, वो जो ऐसे अवतार में इस जन्म में पैदा हुए हैं। पर मैं इतना देख सकती हूँ कि अगर आप लोग आज यहाँ पे हो, जो जितने 10-11 लोग हैं, सभी को एटलीस्ट 2 टाइम का खाना जरूर मिला होगा। उनके पास जरूर रहने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। कहीं ना कहीं पे तो स्कूल में जरूर आप जाते होंगे। तो ये पूरी चीजों का जो भुगतान आपके लिए किया गया है, या तो आपके मम्मी पापा ने किया होगा, या कहीं ना कहीं पे किसी ने भी किया होगा। तो जितने भी अवसर पे, जितने भी पैसे का भुगतान आपके लिए किया गया है, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद दे। वो सुप्रीम को धन्यवाद दे जिन्होंने आपको ये लाइफ दी है। आपको कभी किस चीज की कमी नहीं हुई, जो बेसिक चीजें होती है, जो बेसिक हमें लाइफ जीने के लिए जरूरी है। पानी है, फूड है, जो भी एजुकेशन है, सभी चीजें आपको मिली है। और उससे भी कहीं ज्यादा आपको मिला होगा। आपकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की गई होगी, आप अपने नाना नानी के घर पे या मामा के घर पे जाते होंगे वेकेशन में, या कहीं और भी वेकेशन पे जाते होंगे, आपके मम्मी पापा आपको लेके जाते होंगे साल में 1 बार या 2 बार, कभी भी कहीं ना कहीं पे आप जरूर वेकेशन के लिए जाते होंगे। तो उसके लिए भी आपके लिए तो खर्चा हुआ ना वहां पे पैसे का। कहीं पे आप अगर कोई चीज सीखने के लिए गए, तो वहां पे भी आपके लिए पैसे का खर्चा हुआ। मान लो कोई स्पोर्ट्स टीम में आप गए, आपको ये चीजें खरीदनी पड़ी, ये चीजें, आपके कपड़े जो आपके खरीदे मम्मी पापा ने बचपन से, या किसी ने आपको कपड़े दिए, जो भी है, सभी चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्राना फील करना है। दिल से शुक्राना फील करना है कि ये सब चीजें ऐसे ही मिल गई, आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली। पर आज आपको बैठ के शांति से सभी चीजों के बारे में सोच के शुक्राना फील करना है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीज, क्योंकि ये पूरी जो डिजाइन की गई है उन्होंने, कि हमारे पास्ट में हमें जो चीजें मिली हैं उसके लिए शुक्राना करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आगे हम मनी का चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे अभी करंट जो हमारी मनी की सिचुएशन है उसके लिए कैसे शुक्राना फील करना। पर आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको शांति से बैठ के करना। जब मैंने पहले फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने सब लिखा था कि जहां जहां पे पैसे का भुगतान मेरे लिए हुआ था, मैंने वो सब चीजें लिख दी थी। आपके ऊपर है, इन्होंने बोला नहीं है लिखने के लिए, आपको इन्होंने इतना ही बोला है कि बैठो शांति से, और जहां पे भी भुगतान हुआ है उसके बारे में सोच। सॉरी, किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे? अलिफिया बेन, આ એક્ટિવિટી अर्ली मॉर्निंग करवानी છે कि एट एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन डू? नो, दिस वन आई वुड से डू इट अर्ली मॉर्निंग। इन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि सुबह उठ के तुरंत ही ये प्रैक्टिस रीड करे, और ये जो यहाँ पे प्रैक्टिस दी हुई है वो करे, क्योंकि मोस्टली आपको पूरे दिन में ही, क्योंकि एक बार में तो शायद सब कुछ याद भी नहीं आएगा। कितनी सारी चीजें हैं जो बचपन से आज तक हमें मिली है, तो वो सब चीजें आप एक बार में रिकॉल भी नहीं कर पाओगे। तो पूरे दिन में आपको ये करना है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि रोज रोज भी आप कर सकते हो तो करना। खाली इतना सोचना तो है कि कहाँ कहाँ पे आपके बारे में आपको पैसे मिले थे, खाली सोच के उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, दैट्स इट। ये आपका सबकॉन्शियस ये चीजें लाएगा, आपके पास्ट में से आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको पैसे का भुगतान हुआ था आपके लिए। तो ये एक मेमोरीज आपकी रिकॉल होगी, और हो सकता है कि सभी मेमोरीज एक टाइम में ना भी आए, तो कोई बात नहीं। जब भी आपको लगता है कि चलो मेरे पास टाइम है, लेट मी थिंक ओवर इट, थिंक करके उसके बारे में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर।
Amina, start reading. You're on mute. ना आमिना कहाँ चली गई? ओके चलो मैं ही रीड करती हूँ. So all of these things cost money and you receive them all at no charge. As you travel back through memories. मैं करूँ? हाँ आप कर लो. Thank you. All of these things cost money and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that Equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. Yes. तो यहाँ पे आपको सिंसियरली ग्रेटिट्यूड फील करना है, क्योंकि आपको जहां से भी अभी तक का मनी का आपका जो सोर्स, जो कुछ भी हो सकता है, मे बी शादी के बाद आपके हस्बैंड ने कमाया है जो भी पैसे, शादी से पहले माँ बाप ने खर्चे थे, या किसी ने भी कभी मे बी आप अपने किसी और फैमिली के साथ बड़े हुए हो, या जो भी है आपके लिए जहां पे भी मनी का भुगतान हुआ था, आपको यहाँ पे रियलाइज करना है कि किसी न किसी का हार्ड अर्न्ड मनी था वहां पे. आपको ये यहाँ पे रियलाइज करना है. और एवरीथिंग, जितना भी आपके लिए, जितनी भी मेमोरी में आपको सब कुछ आता है पास्ट में से, सभी चीज के लिए आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा शुक्राना करना है. और जितना सिंसियरली आप ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना आप फील करोगे, इतना ही आपके फ्यूचर की जो मनी की आपकी सिचुएशन है वो गारंटीड वो इंक्रीज हो जाएगी. ये गारंटी यूनिवर्सल लॉ देता है, और हम सबने यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये होता ही है. ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." तो ये आपको ये करना है, एक स्टिकर बनाना है, इसके ऊपर ये लिखना है, "Thank you for all the money I've been given throughout my life." और इसको फिर क्या करना है वो आगे ये बताएंगे, पर ये जो प्रैक्टिस है आपको पूरे दिन में करनी है. लेकिन जैसे सुबह सुबह तो आपने पूरा याद करके सभी चीजों के बारे में आपने शुक्राना कर दिया, फिर जब जब ये आपने ये जो स्टिकर लगाया होगा, जब जब उसके ऊपर आपकी आईज जाती है, आपकी नजर जाती है, उस टाइम पे भी आपको याद करके शुक्राना करना है. ओके, लेट्स रीड फर्दर के कैसे करना है. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least one in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and to be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are, the more you feel it, the faster, and you will see a miraculous change to the circumstances of your money. तो यहाँ पे आपको इन्होंने यहाँ पे मैजिक डॉलर बिल बोला है. आप रुपये, पैसे, मतलब कोई भी रुपये का नोट ले सकते हो, 50, 100, 200, जो भी आपको लेना है. आप कोई भी मिनिमम वाला भी ले सकते हो. 10 रुपए का भी नोट अगर मिलता है, मुझे पता नहीं, पर वो भी ले सकते हो. और उसको आपको क्या करना है, उसके ऊपर ये स्टिकर लगाना है, ये जो हमने आगे पढ़ा ना, "Thank you for all the money I've been given throughout my life." हिंदी में क्या बोलेंगे, पैसे के भुगतान के लिए धन्यवाद, ऐसा कुछ था उसमें. हम प्रैक्टिस भेजते ही है वैसे भी हिंदी का, तो आप हिंदी में भी कर सकते हो. तो आपको ये क्या करना है, एक तो सुबह सुबह में आपको एटलीस्ट वंस टाइम इन द मॉर्निंग, वंस इन द आफ्टरनून, एक बार ये जो भी आपने जहाँ पे भी लगा दिया, मान लो आपने वॉलेट में रख दिया, मैंने अपने फ्रिज पे लगाया हुआ है, मैंने अपने बेडरूम में भी लगाया हुआ है, अपने वॉलेट में भी लगाया हुआ है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप कहीं पे भी ये लगा दो और उसको एक बार निकाल के पैसों के साथ इस स्टिकर को निकाल के हाथ में लेके उसको फील करना है और जितना हो सके इतना ग्रेटिट्यूड फील करके थैंक यू वर्ड्स बोलने हैं आपको कि थैंक यू फॉर दिस मनी। ऐसा करके आपको सिंसियरली उसके लिए हाथ में एहसास करके आपको फील करना है। जो नोट है, जो भी बिल है, मनी का जो बिल बोलते हैं यहाँ पे, हम इंडिया में नोट बोलते हैं, तो मनी का जो भी पैसे का जो नोट है 10 रुपए का या 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 का, जो भी है, आपको लेके हाथ में उसको फील करना है और उसके लिए जितना हो सके उतना फील करके थैंक यू बोलना है और फिर देखना कैसे मिरेकुलस चेंजेस आते हैं आपके सर्कमस्टेंसेस में। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts or rebates, or decrease in the cost, or receive all kind of material things that would have cost you money. तो यहाँ पे ऐसा ही होगा कि मनी अलग अलग तरीके से आपके पास आएगा। वो अनएक्सपेक्टेड कैश हो सकता है, किसी ने पहले कभी आपने किसी को पैसे दिए होंगे, अचानक से वो आने लगेंगे, कहीं ना कहीं पे डिस्काउंट्स आ जाएंगे, रिबेट्स होंगे, कहीं कितनी अलग अलग तरीके से मनी आ सकता है आपके पास। मान लो आप कुछ जो जो चीजें आप कभी कभी खरीदते हो पैसों से, वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जैसे वहां पे आपकी सेविंग्स हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहाँ पे पैसे का जो पैसे का सर्कल होगा वो इतना अलग तरीके से वो काम करेगा। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत हुआ है अभी 10 महीने से। तो ये आपकी लाइफ में भी सेम इसी तरह ही होगा। आपको बिलीव करना जरूरी है। अच्छा, मैंने अभी देखा पड़ा उसको, आमिना का कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया इसलिए वो चली गई। ओके, तो लेट्स रीड फर्दर। विनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग। आप म्यूट पे हो। मैं कर लूं रीडिंग? हाँ हाँ, कर लो। Okay. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. तो ये एक कंप्लेन आपको बहुत भारी पड़ेगी, इवन अपने विचारों में भी। तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये हमेशा एक अलर्टनेस होना चाहिए आपके माइंड में। जैसे ही आप कुछ बोलना जा रहे हो या कुछ इवन अपनी सोच में भी ला रहे हो कि यार इसकी तो कितनी प्राइस है, इसकी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या अरे यार ये तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, कि कोई भी ऐसी बातें है जो हाँ ऑटो पायलट पे ऐसा होगा कि आपको ये ऐसे सारे थॉट्स आएंगे। तो कोई बात नहीं, आपको उसी टाइम पे सोचना है कि एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेन? क्या मैं तैयार हूं ये कंप्लेन के लिए जो मुझे भुगतना पड़ेगा? ऐसा बोल के आपको वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है, क्योंकि ये एक कंप्लेन आपकी जो फ्लो होगा मनी का आपकी लाइफ में उसको कंप्लीटली स्टॉप भी कर सकता है और उसको स्लो डाउन भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि आपने वहां पे कितनी फीलिंग्स दी है, कितने पावर दिए है वो वर्ड्स को, इस पे डिपेंड करेगा। पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू कंप्लेन अबाउट मनी। ठीक है? ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। From this day forward,
Make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, or discount, or something that someone gives you that cost money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instances gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money you have just received. Being grateful for the money you have just received. हाँ, यानी increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. तो अभी अभी आगे से जितना भी आपको कोई भी चीज है, आपको सैलरी मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, ये भूलना मत, ये बहुत ही जरूरी है कि जहां पे भी आपको मनी का कुछ भी रिसीव करते हो, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करें. जितना हो सके इतना आपको शुक्राना फील करना है, नहीं तो वापस आप मनी का फ्लो रोक देंगे. मान लो इसके बारे आपने में शेयरिंग करना है मुझे, कर हाँ सकती हूँ? हाँ, पहले ऐसा होता था कि छोटा मोटा डिस्काउंट मिलता था ना, तो इतना कुछ थैंकफुलनेस नहीं रहता था. जैसे किसी ने 10 रुपए का भी डिस्काउंट, तो ऐसा लगता था 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, ऐसे होता था. लेकिन अभी 10 रुपए का भी मिलता है ना, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि उसके लिए तो 10 रुपए ज्यादा है ना, वो उसके लिए ज्यादा होगा, लेकिन भले हमारे लिए इतना मैटर नहीं, उसने दिया वो बहुत बड़ी बात है. तो वो ऐसा शुक्राना होता है अंदर से. वेरी नाइस. यस, इवन 1 रुपए का भी, अब अगर आपको कहीं पे 1 रुपया भी मिलता है, मान लो सड़क पे मिल गया, तो भी इसके लिए भी आपको शुक्राना करना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे के बारे में बात नहीं है. यहाँ पे ये है कि आपको अगर कुछ मिलता है तो आप शुक्र हो, आप शुक्र फील करते हो. तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि बहुत छोटे से छोटी चीजों के लिए भी आपको शुक्राना फील करना है, बहुत ही जरूरी है. और कभी कभी हम भूल जाते हैं, अपने इतने लाइफ में हम बिजी हो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कहीं कहीं पे कि जो हमें मिलता है तो हम उसके लिए शुक्राना नहीं करते. पर आज आज से आपको ये याद रखना है, ये अभी एक पत्थर की लकीर समझ के लिख दो कहीं पे, कि जो भी आपको मिलेगा, जितना भी पैसा आपको कहीं पे भी मिलेगा, चीजें मिलेंगी, जो भी जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा शुक्राना फील करना है, बहुत ही ज्यादा. तो आपकी जो अभी करंट सिचुएशन होगी कैसे बदल जाएगी, आपको मतलब आप हैरान हो जाओगे. ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर. स्क्रॉल करना पड़ेगा. हाँ, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5. Magic practice number 5. Magic money. 1. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, and feel gratitude for each one. Second, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you have received that were provided at no charge to you. Third, as you recall each memory where money were paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Fourth, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in a big bold letters. Thank you for all the money you have been given throughout my life. Fifth, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Sixth, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for abundance of money you have been given in your life. Seventh, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand
and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. तो ये जो आप लिखोगे यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में थैंक यू फॉर, ये आपको रीड करना है स्लोली, उसके बारे में सोच के बहुत सारा प्यार देना है मनी के बारे में, ठीक है, और शुक्राना करना है. ओके, सो आज की प्रैक्टिस सभी को समझ में आ गई ना? Yes, Alifia. Okay. So yeah, let's read further for our power book. तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था. दी पावर बुक का ना कौन सा मतलब चैप्टर चालू है? पावर बुक का ये रहा चैप्टर. अभी ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा है, फीलिंग इज क्रिएशन, अभी हम लाइफ फॉलोज यू वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. भावनाओं की शक्ति क्या? नहीं, भावनाओं की शक्ति हो गई, फीलिंग फ्रीक्वेंसीज हो गया. जीवन आपका अनुसरण करता है। Yes. अच्छा, जीवन 99 आपका पेज अनुसरण नंबर। करता है. ओके ओके हाँ, ओके 99 पेज नंबर। ओके ओके, थैंक यू. हाँ, ये लाइफ फॉलोज यू. Okay, so let's read. So Amina, you can continue. Choose what you love. Okay. Choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car in everything? Because if you choose to feel nothing but love for that car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just gauge yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. तो यहाँ पे भी सेम बातें की है. आज मनी का हमारा चैप्टर था मैजिक बुक में, और यहाँ पे भी यही बात उन्होंने की है कि जब आपको लाइफ अगर कुछ प्रेजेंट करती है, मान लो आप कहीं से गुजरे और वहां पे आपका जो ड्रीम होम है, आपको जो जैसा हाउस पसंद है वो आपने देखा, तो वहां पे आप अगर आपको लाइफ ये प्रेजेंट कर रही है, जिंदगी आपको ये हाउस दिखा रही है, उसका मतलब है कि वो आपको चॉइस दे रही है. यहाँ पे क्या आप चूज करते हो उसको प्यार देना, या आप चूज करते हो ऐसा कुछ भी बी लिटिल फील करना कि यार इनके पास तो इतना अच्छा घर है, मेरे पास तो नहीं है. तो ये अगर आप ऐसा फील करोगे, अपने आप को अपने ड्रीम हाउस से और ज्यादा दूर धकेलोगे. पर जब आप वो हाउस को देख के बोलते हो वाओ सच लवली हाउस, जितना हो सके उसको इतना प्यार देते हो, बहुत ही अच्छा अंदर से फील करते हो वो हाउस को देख के. इवन जिनके पास वो हाउस है उनके बारे में भी एक मैजिक डस्ट भी कर दो उस टाइम पे. तो यानी मैजिक डस्ट मतलब उनके बारे में भी ब्लेसिंग्स की तरह सोचो कि वाओ उनके लाइफ में भी अच्छा हो. तो जैसे ही आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिवली आप कुछ भी सोचते हो, जैसे ही वैसे तुरंत ही आप उसको प्यार दे रहे हो. फीलिंग गुड, जो आप अच्छा फील कर रहे हो, जो अबोव द लाइन वाला फीलिंग्स है वो आप फील कर रहे हो. तो उससे क्या होता है, आपने चूज किया कि आप लव दोगे. ये आपकी चॉइस थी यहाँ पे कि वो घर को देख के कुड़कुड़ना है, कोई खराब फीलिंग्स में जाना है, या उसको देख के अच्छा फील करके अंदर अंदर बहुत ही खुश होना है. तो ये चॉइस आपके पास हमेशा ही रहती है. तो यही समझना है आपको. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Amina? Huh. Okay. When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose.
But if you feel sad and lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you are overweight and you are walking down the street and person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you are where is it? Struggling with her. I scrolled up. Okay. If you are struggling with some kind of disease and you are surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you so you can choose health. And so when you feel love for the health around you more than you feel bad about lack of health, you are choosing health for yourself. When you यानी feel देखो good, पूरी गेम फीलिंग्स की है यहाँ पे। लाइफ आपको बार बार ऐसी चीजें लाके खड़े करती है आपके सामने। जब आप अपनी मान लो आपकी भी मैरिड लाइफ जो भी है, और आपको चाहिए कि आप भी वो कपल की तरह हो जो हैप्पी कपल दिख रहा है, या आप अभी ऐसे हो कि आपको पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में डेस्परेटली, तो ये अगर लाइफ ने आपको हैप्पी कपल्स दिखाया है, तो ये लाइफ चाहती है कि आप चूज करो। कैसे चूज करो? कि हाँ, वो हैप्पी कपल को देख के आप बहुत ही खुशी अंदर से फील कर रहे हो कि वाओ दे आर सो मैडली इन लव, लाइक यू नो यू आर फीलिंग समथिंग गुड अबाउट देम, कि कितने, हाँ, और आप ब्लेसिंग भी दे देते हो उस टाइम पे। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, ब्लेसिंग भी दे देती हूँ कि उनको हमेशा खुश रखे, ऐसे जैसे अभी ये खुश है हमेशा खुश रहे। तो ये क्या किया आपने, अपनी लाइफ के लिए एक तरह का कुछ चूज किया यहाँ पे। और जब आप अगर चूज नहीं करते हो, अगर आप ऐसा फील करते हो कि यार मेरे पास तो है ही नहीं, अपने आप के बारे में लेक फील करते हो जैसे ही, तो आपने लाइफ को क्या बोला कि नो आई डोंट वांट, आई वांट टू बी सैड एंड लोनली, आई डोंट वांट हैप्पीनेस इन माय लाइफ। ये बहुत ही बारीकी की चीजें होती है, बहुत डीप होती है ये चीजें। धीरे 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 करके आपको समझ में आएगी लाइफ में, और एक्सपीरियंस भी करोगे आप। जैसे ही कि कोई चीज को देख के अगर आप सैड या लोनली फील करने लगते हो, तो समझ लेना वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो यूनिवर्स में। अगर आप खुद अभी ओवरवेट हो और सड़क पे जा रहे हो, वहां पे कोई ऐसी बंदी या ऐसा बंदा मिला जिसका परफेक्ट वेट है, बहुत जबरदस्त बॉडी है उसके पास, तो उसको भी देख के आपको बहुत ही अच्छा फील करना है। तो क्या करोगे आप, जब अच्छा फील करते हो वैसी बॉडी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करने लगते हो। तो ये आपको हमेशा देखना है कि आपको अपने बारे में अगर कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको अगर लाइफ कभी कभी ये क्लूज देती है, इसको हम क्यूज बोलते हैं ये आपके लिए क्यूज है चूज करना, वहां पे शुक्राना चूज करना, प्यार को चूज करना, rather than choosing sadness or loneliness or lack। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है। अमीना, आपको कोई क्वेश्चन था यहाँ पे? नहीं, क्वेश्चन नहीं था। अभी आपने जो लास्ट लाइन बोली तो वही था कि ये जो हमारा जो एक प्रैक्टिस था ना क्लू वाला, उसके हाँ। जैसा ही है कि यूनिवर्स हमको क्लू देता है, हमको समझना है वो क्लू को। ऐसे ही कोई चीज हमारे सामने नहीं आ रही है, कुछ बताने के लिए हमको ग्रेटफुल होने के लिए आ रही है, ऐसा है ना। यूनिवर्स पर्पसली हमारे सामने ये सारे सर्कमस्टेंसेस लाती है सो दैट हम उसको पॉजिटिवली रियलाइज करके हम हमारे खुद के लिए अट्रैक्ट करें वो चीज। ऐसा आप ये कहना चाह रहा है, मैं वो पूछना चाहती थी। इज दैट इट मीन्स टू थिंक? यस यस, डेफिनेटली। ये लाइफ आपको बहुत सारे क्यूज देती है, तो आपको उस टाइम पे अलर्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इतना, अभी आप देखना कि 99% ऑफ द टाइम, मुझे लगता है मोर देन दैट, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। या तो आप अपने पास्ट में जीते हो या तो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो।
जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो तो आप ये जो यूनिवर्स आपको जो क्यूज देता है, जो क्लूज आपको मिलते हैं, वो आप खुद देख पाओगे। और तभी आपको समझ जाना है कि ये लाइफ अगर मेरे सामने ये प्रेजेंट कर रही है तो उसके पीछे ये रीजन है, मुझे ये चॉइस दे रही है, मुझे अभी चूज करना है। क्या चूज करना है? शुक्राना वाली फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, लव की फीलिंग्स, प्यार की फीलिंग्स। तो ये आपको चूज करना है। ओके, सो यहां से हम कल पढ़ेंगे व्हेन यू फील गुड अबाउट एनीथिंग। ओके, अभी हम पावर बुक में तो स्लो ही जा रहे हैं, और मुझे लगता है पावर और मैजिक बुक साथ में करने से बहुत फायदा हो रहा है, राइट? सबको लग रहा है कि पावर बुक और मैजिक बुक साथ में करने से बहुत ही अलग टाइप का हमें इस बार महसूस हो रहा है। यस दी, इट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ना बहुत अच्छा लगा, डाउट्स बहुत ज्यादा डीप में क्लियर हो रहे हैं। जैसे वहां से कुछ पढ़ के और यहाँ पे पढ़ते ना तो ज्यादा समझ में आ रहा है। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जैसे ही आप ये सब चीजें साथ साथ में करते जाते हो, डीप अंडरस्टैंडिंग आती है, तो आप मैजिक बुक भी बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। इसीलिए मैं पावर बुक में बहुत स्लो जा रही दी, हूँ। मुझे ना आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए। कल आपसे जो शाम में बात हुई, और मैंने पावर बुक पता 4-5 महीने से लेके रखी थी, बट उसको हाथ नहीं लगाया था। मैंने कहा हाँ पढ़ूंगी पढ़ूंगी, बट अभी जस्ट बुक ओपन की मैंने तो वो रिलेशनशिप वाला जो उसमें था टॉपिक, उसमें था कि रिलेशनशिप कैसा भी हो, विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपको सिर्फ प्यार देना है और रिस्पेक्ट देनी है। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि मुझे कुछ मिलेगा उसके रिटर्न में, तो रिलेशनशिप ठीक होता जाएगा। और ग्रैटिट्यूड देना है। तो मुझे मेरे प्रॉब्लम का आंसर भी मिल गया और मतलब हर चीज का क्लियरिफिकेशन मिल गया कि मुझे करना क्या है अब। यस, डेफिनेटली ये बुक्स ही सब चीजों का आंसर है हमारा। तो बहुत ही आपको नीलम जी, बहुत 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 ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और जी थैंक यू दी। हाँ, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत जल्द हो जाएगा। बस ये जी, पाथ पे रहो। और आपने वो सुबह उठ के किया था आज ग्रेटिट्यूड 4 बजे? हाँ जी दी, किया था। 4 बजे तो नहीं उठ पाई क्योंकि रात में हमारे घर पे कल प्रोग्राम था तो मैं लेट सोई थी, बट 5:30 बजे उठ के कर लिया था मैंने। कोई बात नहीं, बराबर है, कोई बात नहीं, जो भी टाइम पे उठ के कर सकते हो करो। ओके, सो जी अभी हम हाथ थोट अपना पढ़ेंगे यहाँ पे, और फिर कल से वापस वो कंटिन्यू करेंगे पावर बुक। ओके, सो आई एम कनेक्टेड टू ऑल लाइफ. We can say either destroy the planet or we can heal it. We can either destroy the planet or we can heal it. It is up to us individually. Sit down every day and send some loving, healing energy to the planet. What we do with our minds make a difference. तो जो भी आपके अंदर है, आपका लविंग थॉट्स भेजना चाहते हो अपने प्लैनेट के लिए, या हमेशा कंप्लेंट्स भेजना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो हम अपनी ये पूरी प्लैनेट के ऊपर हम सभी के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड है एक्चुअली। जब हम ये मास मेडिटेशन या कुछ भी करते हैं तो हम पूरे प्लैनेट को एक हीलिंग एनर्जी भेजते हैं, और बहुत ही इससे बहुत ही फायदा होता है, सभी को फायदा होता है। तो क्या आप अभी एक ऐसी एनर्जी का हिस्सा बनोगे जो एक हीलिंग एनर्जी है, या आप ऐसी एनर्जी का हिस्सा बनोगे जो डिस्ट्रॉइंग है, जो कंप्लेनिंग है? ये आपके हाथ में चॉइस है। तो आई एम स्पिरिट, लाइट, एनर्जी, वाइब्रेशन, कलर एंड लव. I am so much more than I give myself credit for. I am connected with every person on the planet and with all of life. I see myself healthy, whole, and living in a society where it is safe for me to be who I am and to love one another. I hold this vision for myself and for all of us. For this is a time of healing and making whole. I am part of that whole. I am one with all life. And so it is. यहाँ पे बहुत ही डीप बात यहाँ पे बोल रहे हैं लुइस है कि मैं क्या हूं? मैं खुद एक एनर्जी हूं, और मैं अभी अपने आप को जो भी क्रेडिट दे रही हूँ उससे कहीं ज्यादा बढ़ के हूं मैं। और मैं ये
जो होल है जिसका मैं पार्ट हूं और वही होल भी मैं ही हूं। जैसे समुद्र की बूंद भी बूंद है पर वही पूरा समुद्र है, क्योंकि बूंद बूंद बन के वो पूरा समुद्र बनता है। उसी तरह से मैं भले होल का एक पार्ट हूं पर वही होल भी मैं ही हूं। समझे आप? ये बहुत ही डीप चीजें होती है समझने के लिए। तो ये एक लुइस है, अपनी एक विजन देख रही है और वो विजन हमें भी दे रही है कि मैं अभी ऐसी सोसाइटी में लिव करती हूँ जहाँ पे सभी को एक दूसरे को प्यार करना बहुत ही इजी है एंड सेफ है, और सभी यानी पूरे प्लैनेट को हील करने के लिए मैं भी एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा बनती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका कनेक्शन पूरे सभी के साथ में है, क्योंकि जिस सोर्स में से आप आए हो वही सोर्स में से सभी लोग आए हुए हैं। पूरे लाइफ में एनिमल्स है, प्लांट्स है, इवन एक एक छोटी छोटी चीज के अंदर एक एनर्जी छुपी हुई होती है, एनर्जी होती है सभी चीज में। तो वही एनर्जी का हम भी एक पार्ट है। तो ये आपको समझना है कि सबके साथ कैसे आप जुड़े हुए हैं, आप अलग नहीं हो। हाँ, आप इंडिविजुअल जरूर हो, आपके पर्पस अलग है, आपके फिंगरप्रिंट्स अलग है, पर स्टिल वी ऑल आर कनेक्टेड विथ द लाइफ। तो ये आपको यहाँ पे समझना है और अपनी लाइफ में उसको उतारना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज भी थोड़ा सा लेट ही हो गया, तो मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। लुक इट इन होगा, एक्चुअली लेट मी पुट माय ओन मेडिटेशन जो मैं पहले मैंने करवाया हो। वो मेरा नेट ही नहीं चल रहा है क्योंकि एयरप्लेन मोड में था। ओके, तो सभी लोग यहाँ पे अच्छे से बैठ जाओ, पूरा अपना बैक स्ट्रेट कर लो, आंखें बंद, और धीरे से डीप ब्रीदिंग भी स्टार्ट करो। In January this year, I had a mind-blowing experience under a form of plant medicine called Aya. आवाज नहीं आ रही है बराबर। हाँ हाँ, मैं रखती हूँ एक सेकंड। ओके, क्लास होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी म्यूजिक रखती हूँ और हम मेडिटेशन। ओके ओके, सबको ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है यहाँ पे? धीरे धीरे आवाज आ रही है। ओके, सो यहाँ पे सबको मेडिटेशन करना है। आप लोगों को सबको सुनाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये जो मैंने ऑडियो रखा है? क्लियर नहीं है अलिप्सा, वो थोड़ा रिकॉर्डिंग जैसा लग रहा है अभी ओके, तो ये मेडिटेशन का भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगी स्टार्ट करने से पहले कि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं। अभी सुनाई दे रहा है हमें ना? पूरी जर्नी अभी जो है ये हमारे अंदर झांकने की जर्नी है। यस यस, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पावर्स क्या है, पूरी जर्नी इसी के बारे में है। तो ये मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे सोच के अंदर थोड़ा सब आप अपना वीडियोस ऑन करके मेडिटेशन करो और हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं अपने बॉडी को।
जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं हमारी हार्ट बीट भी कम होने लगती है। तो ये जो भी मेडिटेशन के हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है, कहीं कहीं आप लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी कि मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स है। मैं आज अगर होगा तो थोड़ा शेयर भी करूंगी कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सर्च करके थोड़ा गूगल में भी शेयर करूंगी, और मेरे पास जो है वो भी आपको मैं शेयर करूंगी। तो मेडिटेशन हम इसीलिए करते हैं कि थोड़ा अंदर अपने आप के अंदर जाके झांक सके, देख सके। और दूसरा है कि जैसे हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर पाए। पूरी इतना भागदौड़ होती है पूरी लाइफ में, सुबह से लेके रात तक। तो कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा ठहराव चाहिए होता है अपने खुद के साथ। तो ये एक तरह का ठहराव लाने के लिए हम करते हैं मेडिटेट, और जिससे हमारे जो थॉट्स है वो कंट्रोल तो चलो हो ही जाएंगे आगे जाते, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं। पर कंट्रोल से भी ज्यादा क्या होता है कि हमारे थॉट्स भी कम होने लगते हैं। पर आज मैं आपको बोलूंगी कि आपको किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं करना है, खाली अपने आप को ऑब्जर्व करना है। और ये गाइडेड मेडिटेशन है, तो मैं आपको जो जो बोलती जाती हूँ इसके ऊपर बस ध्यान देना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर मेडिटेशन के बारे में भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, मेडिटेशन की 3 चीजें बहुत जरूरी है कि आप पूरा अपना स्पाइन स्ट्रेट रखें, क्योंकि जो स्ट्रेट होता है स्पाइन तो आप अलर्ट के लिए। ओके, एंड आंखें बंद कर ले, और अपने जो हाथ है उसको हमेशा फेसिंग द हेवंस अबोव, ये वाले खुले रखने हैं आपको, उसको ऐसे बंद नहीं रखना है। क्योंकि आप फील करोगे कि आपकी जब श्वास आप लेते हो शैलो होती है ब्रीदिंग आपकी, जब भी आप एक कर देते हो। जब आप खुले रखते हो तो आपकी ब्रीदिंग और एक्सपांड होती है। तो मैं थोड़ा इसको कम करती हूँ क्योंकि फिर मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। ओके, तो प्लीज आप अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अगर आप चेयर पे या ऐसे बैठे हो तो अपने फीट ग्राउंड को टच करते हो उसी तरह से बैठ जाएं, और अपने स्पाइन को पूरा सीधा रखें, और हाथ अपने लेग के ऊपर या ऐसे थाइस के ऊपर एकदम अच्छे से रख दें। अभी पूरा अपने बॉडी को रिलैक्स करना चालू करेंगे। तो पहले हम डीप ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हम 3 या 4 डीप ब्रीदिंग लेंगे। उसमें आपको क्या करना है, जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपको 7 काउंट करना है, उसके बाद आपको होल्ड करना है 7 काउंट के लिए। अगर आप ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरह से देख लो। पर ये आपको एक मैं स्टैंडर्ड दे रही हूँ कि जैसे 7-7-7, यानी रिलीज भी आपको 7 काउंट तक करना है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ इन। इनहेल करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे 7 काउंट तक, एंड नाउ एक्सहेल आउट कंप्लीटली। नाउ अगेन लेट्स इनहेल, होल्ड, and exhale. Now again, let's inhale up to 7 count. Hold up to 7 count. And exhale up to 7 count. अभी आपका थोड़ा बॉडी रिलैक्स हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी अपने आप को रिलैक्स करना चालू करता है। तो जब भी आप ब्रीदिंग करें अपने पेट से करें, अपने स्टमक की मूवमेंट को देखें ऊपर नीचे। जब कॉन्शियसली आप ब्रीदिंग करना
चालू करते हो तो ये आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को भी आपको ये सुधारेगा आगे जाके। अगर आप शैलो ब्रीदिंग करते हो अपने लंग्स में से, तो उसकी जगह पे आपको धीरे धीरे कॉन्शियसली एफर्ट लगा के आपको स्टमक ब्रीदिंग करना है, जिसमें आपका पूरा पेट फूलता है और वापस शेंक होता है उसी तरह से। ओके, टुडे वी विल डू अ रिलैक्सेशन मेडिटेशन। सो हम ऊपर से लेके नीचे तक अपना फोकस लेके जाएंगे हमारे पूरे बॉडी के ऊपर, और सभी मसल्स को, सभी ऑर्गन्स को अंदर से रिलैक्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर हेड। तो हमारा पूरा ध्यान जो फोकस है हमारे सिर की तरफ हम लेके जाएंगे, पूरा उसको रिलैक्स करेंगे। फर्स्ट हमारा जो माइंड है उसको रिलैक्स करेंगे, मूव करेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी आपको अपना फोकस लेके जाना है फोरहेड की तरफ। तो जितने भी मसल्स है उनको रिलैक्स करना है वहां पे। सो रिलैक्स ऑल योर फोरहेड मसल्स। अभी धीरे धीरे आप रिलैक्स करेंगे, जितने भी मसल्स के अंदर बाहर पूरा अपने फेस को आप रिलैक्स करते हो। So relax the whole face, including your nose, ears, eyes, cheeks. अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपने नेक की तरफ, अपने पूरे नेक जो गले की तरफ जितने भी मसल्स है उसको रिलैक्स करेंगे। अपना अटेंशन पूरा उसकी तरफ लेके जाए। और बीच बीच में अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ भी रखें। ऑब्जर्व करें कि आपकी सांसें कैसे चल रही है। यहाँ पे हमें डीप ब्रीथिंग नहीं करना है, बस अपने ऑब्जर्व करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे, अपनी छाती की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हमारे पूरे जो शोल्डर्स के मसल्स है, हमारे हाथों के जो मसल्स है, पूरे उनको रिलैक्स करेंगे। Relax your whole hand fully and completely, including your fingers, your palm, your upper hand, lower hand. Now let's move on to our spine. तो हमारे जो स्पाइन के पूरे मसल्स है सभी को हम रिलैक्स करेंगे एक के बाद एक। हमारा अपर बैक एरिया है, लोअर बैक है, मिडिल बैक है, सबको एकदम अच्छी तरह से इसको रिलैक्स करना है। तो ये हमारा पूरा जो अपर का पार्ट है पूरा रिलैक्स है। अभी हम हमारे दिल की तरफ ध्यान लेके जाएंगे, हमारे दिल को भी हम रिलैक्स करेंगे, हमारे लंग्स को भी रिलैक्स करेंगे। पूरा जो हमारा अपर चेस्ट है उसके मसल्स को भी रिलैक्स करेंगे। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमारा जो पूरा स्टमक का एरिया है, तो हमारी पाचन क्रिया जहाँ पे होती है, पूरे वो मसल्स को और अंदर के ऑर्गन्स को भी हम रिलैक्स करेंगे पूरा। रिलैक्स एवरीथिंग इन योर स्टमक। पूरे मसल्स को रिलैक्स कर दो। अभी आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबको रिलैक्स करना है। Now let's move on to our thighs. हमारे हिप्स के मसल्स को रिलैक्स करना है, थाइस के मसल को रिलैक्स करो। अभी आप ऑब्जर्व करोगे कि पूरा अपर बॉडी आपका एकदम अच्छी तरह से रिलैक्स फील कर रहा है। अपना स्पाइन सीधा रखें पर उसको भी पूरा रिलैक्स करके रखें, स्टिफ नहीं होना चाहिए। अभी अपने नीज को, अपने काफ्स को, पूरे काफ मसल्स को रिलैक्स करना है। जो
अपने सोल, अपना जो सोल होता है फीट का, उसको रिलैक्स करना है। Now, आपका पूरा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है। अभी वापस अपना ध्यान अपने दिल की तरफ लेके जाएं और सुनने की कोशिश करें आपके दिल की हार्ट बीट क्या है। अगर आपको हाथ रखना है तो आप हाथ भी रख सकते हो अपने दिल के ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा सुने, ट्राई करें। अगर आप नहीं भी सुन सकते तो कोई बात नहीं है। ओके, जो अभी हमने जो ये एनर्जी एक अपने अंदर क्रिएट की, जो रिलैक्सेशन से, उसको भी पूरा दोनों हाथ जोड़ ले और उसको पूरा रब करें इससे। ये जो पूरी एनर्जी है उससे हम हमारे अभी पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लेस करेंगे अपने हाथों से। ओके, तो लेट्स ब्लेस अवर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो ब्रेन है उसको हम ब्लेस करेंगे। हमारे अभी फोरहेड को ब्लेस करेंगे। अपने हाथ, हमारे जो हाथ भी है बहुत ही पावरफुल हीलिंग होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी को हम हील करते हैं ये वाले मूवमेंट के साथ। तो अपनी आईज को, अपने फेस को, ईयर्स, सभी चीजों को धीरे धीरे टच करके उसको ब्लेस करते जाएं। अपने को, शोल्डर्स को, हैंड्स को पूरा, अभी पूरा पीछे अपने जो फीट के एरिया है उसको पूरा टच करके उसको पूरा ब्लेस करें। लिप्स को ब्लेस करें पूरा, अपने अपर चेस्ट एरिया को ब्लेस करें, अपने दिल को पूरा, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा ब्लेस करें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, थाइज है, नीज है, काफ्स है, पूरा नीचे की तरह अपने हाथों को ब्लेस करते हुए नीचे पहुंचे। अपने पैरों को भी अच्छी तरह से ब्लेस कर ले एक पार्ट। नाउ लेट्स अगेन जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर। अब यहाँ पे हम शुक्राना करेंगे भगवान का, अल्लाह का, सुप्रीम पावर का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। यहाँ पे हमें सीखने के लिए ये अवसर दिए हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को आगे अच्छे से बढ़ाने के लिए, मीनिंगफुल करने के लिए। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत कृतज्ञ हैं सभी चीजों के लिए। और अभी हम अपने बॉडी के लिए भी धन्यवाद कहेंगे कि हमारा इतना प्यारा, इतना अच्छा बॉडी हमें मिला है, जो हमारा हमेशा ध्यान साथ देता है, जिस तरह से वो काम करता है 24/7। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, so thank you so much everybody for joining in today, and that's all for today. We will meet again tomorrow same time, same यही प्लेटफॉर्म पे, सेम लिंक है। Okay, everyone. Thank you so much for Thank joining you, in. everyone. Bye. Thank you. Have a good day. Thank you. You too. See you all tomorrow. Love, light, and abundance to all of you. See you.